جی تو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا میں کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے ان پر اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ایک ویڈیو میں ہی بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ میک شور کر لیں کہ اس میں بعض سیٹس اس طرح کی ہیں کہ جس پہ اوور آل پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں، اور بعض سیٹس اس طرح کی ہے کہ جس میں جسٹ پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے افراد ہی اپلائی کر سکتے ہیں، اور تمام کی تمام جو پوسٹ ہیں اس میں میلز اور فیمیلز دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں باقاعدہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیں، تاکہ جابز کے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موصول ہوتی رہیں۔ مزید ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی جوائن کر لیں، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر وہاں سے بھی اپڈیٹس ملتی رہیں، چاہے وہ رول نمبر سلپ کے ریلیٹڈ ہوں یا ٹیسٹ کی تیاری کے ریلیٹڈ ہوں۔ تو کائنڈلی یہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اگر آپ جوائن اور سبسکرائب کر لیں گے۔ اور دوسرا، ہمارے پاس ان کا اوریجنل ایڈورٹائزمنٹ یہاں پہ موجود ہے، اور جو ہم نے پہلے آپ کو اوپن کر کے دکھایا ہوا تھا وہ ان کا پریویس ایڈ تھا، جو مطلب کچھ منتھ پہلے جس پہ ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی۔ ابھی جو لیٹسٹ جابز ہیں جس پہ جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 9 جولائی 2026 ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اینڈ پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بلر ہے، اس لیے تھوڑی سی آپ کو مشکل ہے کہ سمجھ آئے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 9 جولائی 2026، 9/7/2026۔ تو یہ لیٹسٹ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے آپ کو جو سیٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سیٹس کون سی ہیں اور ان کے لیے ایج لمٹ کیا ریکوائرڈ ہے۔ تو سب سے پہلی اسامی جو ہے وہ تو کنسلٹنٹ کی ہے۔ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ آئی تھنک 9 اسامیاں ہوں گی، اور اس میں ایم بی بی ایس ود ایف سی پی ایس اور اس کے سامنے مزید ڈپلوما جات جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، اور ایج لمٹ اس میں اپلائی کرنے کی 30 سے 45 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جونیئر کنسلٹنٹ ہے، اس کی ٹوٹل اسامیاں 8 ہیں، اور اس کے سامنے بھی اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے۔ اس کے لیے بھی ایج جو ریکوائرڈ ہے وہ 30 سے 40 سال ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جاب ہیں کارڈیک سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں سینئر کنسلٹنٹ کی۔ اس کے سامنے اس کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو ایج لمٹ ہے وہ 38 سے 55 سال ہونی چاہیے۔ کنسلٹنٹ کی چوتھے نمبر پر سیٹ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے، اور 30 سے 45 سال اس کی ایج ریکوائرڈ ہے۔ جونیئر کنسلٹنٹ ہے کارڈیک سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، جو اوپر والا ڈپارٹمنٹ تھا وہ اور تھا، اب یہ سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن اور ریکوائرڈ ایج یہاں پہ مینشن ہے۔ تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آتا ہے پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کافی ساری جابز اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلے سینئر کنسلٹنٹ ہے، اس کے بعد کنسلٹنٹ ہے، پھر جونیئر کنسلٹنٹ ہے، اس کے سامنے اس کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اور ریکوائرڈ ایج لمٹ بھی یہاں پہ مینشن ہے، آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ہے الیکٹرو فزیولوجی ڈپارٹمنٹ۔ اس میں بھی اب کافی ساری جابز ہیں، جس پہ جونیئر اسسٹنٹ ہے سب سے پہلے، اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن ہر چیز مینشن ہے۔ اس کے بعد نیوکلیئر کارڈیالوجی کا آ جاتا ہے ڈپارٹمنٹ۔ اب اس میں بھی کنسلٹنٹ ہے، پھر جونیئر کنسلٹنٹ ہے، اس کے بعد سینئر کنسلٹنٹ ہے، اس کے سامنے اس کی نمبر آف پوزیشنز، ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اور اس کے بعد ریکوائرڈ ایج لمٹ وغیرہ مینشن ہے۔ تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ہے اینستھیزیا اینڈ پین مینجمنٹ کا۔ اب اس میں بھی کافی ساری جابز ہیں، جس میں کنسلٹنٹ ہے، جونیئر کنسلٹنٹ، اس کے بعد ریسپائریشن ٹیکنالوجی، اس کے بعد کنسلٹنٹ دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کافی ساری جابز اویلیبل آ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے اینگلوگرافی ڈپارٹمنٹ کی، انٹرنیشنل کارڈیالوجی، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کافی ساری جابز ہیں، جس میں کنسلٹنٹ ہے، اور اگین جونیئر کنسلٹنٹ، پھر سینئر کنسلٹنٹ کیمیکل پیتھولوجی۔ تو مطلب اس میں جو ڈپارٹمنٹ چینج ہوتا ہے لیکن جو سیٹس کے نیم ہے وہ سیم رہتے ہیں، اس لیے آپ نے پزل نہیں ہونا۔ مین فوکس آپ نے ڈپارٹمنٹ میں کرنا ہے، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے یہ مینشن کرنا ہے اپلیکیشن فارم میں۔ تو ابھی آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کیسے فل کرنا ہے اور کہاں پہ ڈسپیچ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ مزید یہاں پہ آ جائیں گے اوپر میمیٹولوجی کا، اس میں کنسلٹنٹ ہے، اس کے بعد دوبارہ جونیئر کنسلٹنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیتھولوجی، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کافی ساری مطلب جابز اویلیبل ہیں کنسلٹنٹ کی۔ اس کے بعد ہے اس میں مزید وہی سیٹس آ جاتی ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ جسٹ جو نیچے اس کا جو ٹائٹل ہے، جس میں گائنیکالوجسٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد مزید ریلیونٹ فیلڈ چینج ہوتا ہے، جو سیٹ کا نام ہے جس طرح کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد
उनका अपना अपना फील्ड होता है। बाज़ औक़ात जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, उसके बाद कुछ जनरल डॉक्टर्स होते हैं जिस तरह के अपने मखसूस फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मेन जो कंसल्टेंट होगा उसके बाद उनकी अपनी अपनी फील्ड्स में वो फॉल करती हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग। तो उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब नीचे भी कुछ चीज़ें मेंशन। अब ये डिपार्टमेंट आ जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग का। अब इसमें भी कुछ जो है जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग है। इसमें इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, लिखी हुई है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन आई थिंक एमएससी नर्सिंग में आपने अगर की हुई है एचईसी की वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके सामने इसकी जो क्वालिफिकेशन है और एज रिक्वायरमेंट है वो भी सारी मेंशन है। उसके बाद हेड नर्स है, इसकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन है और उसके सामने इसकी रिक्वायर्ड एज लिमिट मेंशन है। उसके बाद नीचे है चार्ज नर्स की, इसकी 284 असामियाँ हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है 4 इयर्स की, ठीक है ना, 4 इयर्स की बीएससी नर्सिंग अगर आपने की हुई है और उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 25 से 40 साल के दरमियान है और इसमें किसी किस्म का कोई इससे हटके जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें है अकाउंट्स ऑफिसर। इसमें जो आपकी एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, अगर आपने एम कॉम या बी कॉम ऑनर्स किया हुआ है, यानी कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी फाइनेंस में है या अकाउंटिंग में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 3 इयर्स का होना चाहिए पोस्ट के क्वालिफिकेशन के रिलेटेड। उसके बाद मैनेजर है फार्मेसी का, तो ये डिपार्टमेंट है फार्मेसी सर्विसेज डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें अगर आपने एम फिल किया हुआ है फार्मेसी में तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये चूंकि पुराना ऐड है, सॉरी ये न्यू ऐड है, जो पुराना ऐड है वो ठीक है, उस पर सही समझ आती है, तो इस पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमने इनका जो ओल्ड ऐड है वो ओपन किया हुआ है, वहां से आप रीड कर सकते हैं मजीद इनकी टर्म्स एंड कंडीशन। तो सबसे पहले तो ये है कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म इनका अवेलेबल है, हम इंशाल्लाह आपको ये सेंड कर देंगे व्हाट्सएप। तो अभी आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपने फिल करना है और किस डिपार्टमेंट सॉरी किस एड्रेस पर आपने भिजवाना है इसे फिल करके, और कौन कौन सी चीज़ें आपने इसके साथ अटैच करनी। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने 9 जुलाई 2026 थर्सडे से पहले पहले इस दिन तक आपने 2 बजे से पहले पहले वहाँ पे सबमिट करवाना है, तब आपकी ये एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी। तो ड्यूली फिल्ड application form along with attested copies of all relevant documents including experience, उसके बाद सर्टिफिकेट्स एप्लीकेशन वगैरह ये आपने साथ अटैच करनी है और इसे आपने भेजना है HR डिपार्टमेंट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा। मतलब आपने ये HR डिपार्टमेंट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा में इस डेट से इस डेट तक आपने इस टाइम तक भेजना है, तब आपकी ये एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी। और ये आपने TCS के थ्रू भेजना है या डाक खाने के थ्रू भेजना है, और खुद आपने जाके वहाँ पे नहीं जमा करवाने, क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान में अप्लाई फॉर द कंसल्टेंट कैटेगरीज, जिसमें है सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट जूनियर कंसल्टेंट, डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग, हेड नर्स एंड चार्ज नर्स। इन सब के लिए ओवरऑल पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, और इससे हट के जो दूसरी असामी है उस पर जस्ट पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले ही अहल हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने सब सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, ठीक है। अब इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने जस्ट उसका नेम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है, पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद नेम, अपना नेम आपने यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद फादर्स नेम आपने यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपका आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पे इस फॉर्मेट के मुताबिक लिख देनी है, जिसमें डे मंथ ईयर आएगा। तो आपने अपनी टोटल एज जो है वो यहाँ पे लिखनी है कि कितने साल आपकी उम्र बनती है उसके लिहाज से। तो फिर आपने अपना जो रिलीजन है यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस्लाम, उसके हिसाब से जो भी आपका होगा, ठीक है। तो अपना CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, CNIC नंबर। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे, जेंडर यहाँ पे बताएंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, और व्हाट्सएप का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। नीचे आपका आ जाता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, जिस पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर कल को अगर वो भेजेंगे वो किस एड्रेस पे जाता है, पोस्टल एड्रेस पे जाता है, इसलिए वो आपने एड्रेस जो है बहुत ध्यान से लिखना होता है।
तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ई मेल एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना ई मेल एड्रेस जो है वो लिख देना है पेंसिल के साथ। ये सारी चीज़ें आपने पहले तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवाना है, फिर आपने ये डिस्पैच करना। तो नीचे कुछ और मज़ीद चीज़ें भी मेंशन हैं, तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वो पूछ रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यस पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर हैं तो वाकई उसका आपने एनओसी साथ अटैच करना है। उसके बाद अब अगर डिसेबिलिटी आपकी है तो उसके हिसाब से अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे, क्योंकि वो इसका स्पेशल कोटा मौजूद होता है। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा भी मौजूद होता है, तो उसके लिहाज से भी आप कुछ चीज़ें अटैच कर देंगे वो जो आपसे पूछ रहे हैं। तो फिर नीचे बारी आ जाती है क्वालिफिकेशन को ऐड करने की, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है इन फील्ड्स में, और टॉप पे लिखा हुआ है नेम ऑफ डिग्री, आपने यहाँ पे लिख देना है मैट्रिक साइंस, अगर साइंस के साथ की है, वरना आर्ट्स के साथ की होगी। उसके बाद ओब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, डिवीजन यहाँ पे बतानी है कि कौन सी डिवीजन बनती है आपकी, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, उसके लिहाज से परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे, ग्रेड यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम, आमतौर पर बोर्ड से करते हैं तो 22 के बाद उस सिटी का नाम लिख देंगे। इसी तरह ही आपने नीचे अपनी इंटरमीडिएट की यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद बैचलर की डिग्री यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपने उसके बाद अगर एमबीबीएस किया हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये सारी डिग्रीज़ आपने एमफिल की फिर यहाँ पे करनी है। तो जो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड उन्होंने कही हुई है वो आपने लाजमी फिल करनी है, और वो आपकी होनी भी चाहिए, तभी तो आपका अप्लाई होगा, वरना आप फिर जो है आपकी एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं की जाए। तो नीचे कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद एनी अदर एकेडमिक प्रोफेशन भी बता सकते हैं, उसकी भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, मतलब आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताना है। जिस भी सीट के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आपने उसके लिहाज से यहाँ पे लिख देना है। और नीचे आपने टोटल ईयर्स लिखने हैं, टोटल मंथ वगैरह लिखने हैं, एंड डेट यहाँ पे लिखनी है, स्टार्ट डेट, एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन हेल्ड, ये सारी चीज़ें आपने बता देनी है जो आपकी रियली हैं। तो नीचे मौजूद है चेक लिस्ट। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने थे वो आपने अगर अटैच कर दिए तो उसके सामने ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें आपने जस्ट टिक लगाते जाना है। इसका मतलब ये होगा जो वो आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बॉक्सेस बना हुआ है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपने ऊपर पेजेस अटैच किए हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो कितने किए हैं, उनकी तादाद आपने जस्ट इस बॉक्स में लिख देनी है। अगर आपने बिल फर्ज जो है 10-15 किए हैं तो 10 की केस में यहाँ पे 10 लिख देंगे। जितने आपने अटैच किए हैं वो गिनेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को साथ अटैच मतलब नहीं गिनना। इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो आपने एक एक कॉपी करवाई है वो ही गिननी है बस, ठीक है। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप अपना जो ये डॉक्यूमेंट्स है डिस्पैच करेंगे, जिस भी ज़रिए से अपना यहाँ पे आपने यहाँ पे थंब इम्प्रेशन जो है वो आपने लगा देना है। तो इस तरह आपने ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। फिर आपने मतलूबा एड्रेस पर 9 जुलाई से पहले या 9 जुलाई से मतलब 2 बजे तक आप ये भेज सकते हैं। तो ऐसे आपने इसमें अप्लाई करना था। तो हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, आपको कंप्लीट गाइड किया जाए। तो अगर आप फिर भी किसी भी पॉइंट में कंफ्यूज हैं तो काइंडली आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉल के बगैर, ठीक है। कॉल ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, हम आपको इंशाल्लाह जितना मुमकिन है तो आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर ऐसी ही अपडेट्स जो हैं वो फ़ौरन शेयर कर देते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले।